Now may I request Dr. Daraksha Andrabi, the chairperson of Waqf Board, to please come on the stage. اور ان کے ساتھ سوالوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے the executive editor of our company, Mr. Ishfaq Gohar. Big round of applause, ladies and gentlemen. Over to you, sir. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر درخشا اندرابی صاحبہ جوائن کرنے کے لیے اور صبح سے کنٹینیوسلی اس میراتھن کو سننے کے لیے. آپ سے گفتگو کرتے ہوئے مجھے پوری امید ہے کہ دو طرح کی باتیں ضرور سامنے آئیں گی. چونکہ جب آپ نے ٹیک اوور کیا ہے تو اس سے پہلے ذرا آپ کو یہ بتا دوں سوالوں سے پہلے کہ یاد ماضی بڑی عذاب ہے یا رب چھین لے قوت حافظہ میرا. یہ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ مجھے یاد ہے کہ سن 96 میں جب میں نے اپنا کیریئر کا آغاز کیا تھا تو فاروق عبداللہ صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا اسٹیٹ کے اندر ایز اے چیف منسٹر کے, اور مسلم اوقاف ٹرسٹ سامنے آیا تھا. کوچک صاحب چیئرمین تھے اور انہی دنوں یہ کہا گیا تھا کہ جناب بہت ساری داندلیاں ہیں, بڑی پریشانیاں جی, اب جی ہم ایک وائٹ پیپر لے کے آئیں گے. دیٹ واز 1996. فاروق صاحب کی سرکار بھی چلی گئی, سرکاریں بھی بدلی اور مفتی صاحب نے ٹیک اوور کیا تو وہ وائٹ پیپر اور نہ وہ اکاؤنٹ بک عوام کے سامنے آیا. ایک تو یہ. دوسرا, جب مفتی صاحب آئے تو مفتی صاحب نے پورا سٹرکچر چینج کیا. انہوں نے کہا جی مسلم اوقاف ٹرسٹ ایک پارٹی کی جاگیر ہے, ہم اس کو آزاد کرنا چاہتے ہیں, اور آزادی کا نام دیا اس کو کاؤنسل بنا کے, وقف بنا کے, اور کہا کہ اب جتنے لوگ نے پیسے کھائے ہوں گے تو ان سے بھی لیں گے اور عوام کے سامنے ریکارڈ رکھیں گے. بہرحال مفتی صاحب کا ٹینیور بھی چلا گیا, محبوبہ جی بھی آئی, وہ بھی چلی گئی, کچھ کام ہوا نہیں. فائنلی آپ تک باری آئی جب آپ چیئر پرسن کے طور پر آئی. آپ نے ٹیک اوور کرتے ہی یہ کہا کہ جناب خزانہ تو خالی ہے, جو امید تھی وہ یہاں پر نظر نہیں آئی. اکاؤنٹیبلٹی کا فقدان ہے یا واقعتاً اتنا بڑا حساس ادارہ جس کے پاس کروڑوں اور اربوں روپیہ ہونا چاہیے تھا وہ آج خود ملازموں کی تنخواہ کے لیے ترس رہا ہے؟ شکریہ پہلے آپ کا, اور بہت بہت مبارکباد ہے گلستان نیوز کو کہ آپ نے آج ہمیں یہاں موقع دیا بلانے کے لیے, آپ نے بلایا یہاں پہ. رہی بات جموں کشمیر وقف بورڈ کی, وقتاً فوقتاً اس کے نام بدلے گئے, کام تو اکثر وہی رہتا ہے جس کو انسان سمجھ پاتا ہے. آج تک ہمارے ریاست کے چیف منسٹر نے یہ عہدہ سنبھالا اور اس عہدے کے بعد وہ صرف اپنے آفیسز میں رہے اور جو ملازم کرتے رہے. اس میں ایک ڈونیشن کا بہت بڑا فیکٹر رہتا ہے, اس میں ہمارے جو لینڈ ہے, ایسٹس ہے, ان کی طرف دھیان اگر دیا گیا ہوتا تو شاید ہم یہ کہنے پہ مجبور کبھی نہیں ہوتے کہ خزانہ خالی ہے. یا پچھلی حکومتوں نے اگر اس پہ واقعی میں دھیان دیا ہوتا تو آج جب بھی ہمارے سامنے وقف بورڈ کی بات آتی ہے تو ہمارے سامنے ماتا ویشنو دیوی کی بات آ جاتی ہے. جب ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھئی ماتا ویشنو دیوی شرائن کے پاس ہاسپٹل ہے, یونیورسٹی ہے, باقی سارے اتنی چیزیں ہیں وہاں پہ, اتنا ایسٹ ہے, تو اتنا بڑا جموں کشمیر وقف بورڈ کے پاس اتنی زمین, ایک شرائن جب اتنا سب کچھ کر سکتی ہے اور جموں کشمیر وقف بورڈ کے پاس خزانہ خالی کیوں ہے؟ اس کا جواب ہمارے پاس یہی ہے کہ وقت رہتے ہوئے دھیان نہیں دیا گیا, اور جو پیسہ آتا گیا وہاں پہ سب سے بڑی بات سیاست کی رہی, ان پارٹیوں کی رہی جنہوں نے اس کے ذریعے سے اپنے پارٹیوں کو ڈونیشن دیا. یعنی میں اس کو ذرا وضاحت کرتا ہوں. آپ کا ماننا ہے کہ عوام نے, جموں کشمیر کے بلیورز نے یا ملک بھر سے لوگ جو آتے ہیں شردا کے ساتھ پیسہ جمع کرایا, وہ پیسہ وقف کے پاس گیا, بجائے یہ کہ وہ ڈیولپمنٹل ورک پر لگتا, سوشل کاز پر لگتا, وہ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی پولیٹیکل ایجنڈے کو چلانے کے لیے لگایا. یہی صحیح رہا اور یہی حقیقت ہے آج تک جو ہم نے دیکھا اور جو ہم وہاں پہ پاتے ہیں. جو فائلز آپ کھنگالیں گے وہاں پہ تو
कोई आपने जैसा फरमाया कि अकाउंटेबिलिटी का कोई नामो निशान नहीं है, वो सिर्फ पेटियां खोली जाती थी, कहां जाती थी वो तो सब जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं। लेकिन अब जब खजाना हमें खाली मिला तो अब खजाना खाली नहीं रहेगा, बल्कि एक अकाउंटेबिलिटी के साथ जो हमने काम शुरू किया है और जिस तरह से हमने 5 महीने में काम किया वो पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने है और हम पूरे जवाबदेह है, क्योंकि हमारी पार्टी का और हमारी प्राइम मिनिस्टर का मानना है कि न हम खाएंगे न हम खाने देंगे। लेकिन लास्ट 5 महीनों की अगर मैं बात करूं तो ये जो 5 महीने हैं इसमें भी तो जो डॉक्यूमेंट आना चाहिए था, जो एक सॉलिड बातें सामने आनी चाहिए थी कि ट्रस्ट के जमाने में क्या हुआ या वक्फ बोर्ड के जमाने में साबिका दौर में क्या हुआ, उस पर जो आपकी खामोशी है, इदारे की खामोशी है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि वी आर ऑन इट जी, कर रहे हैं। साबिका दौर में भी 20 साल गुजरे, वी आर ऑन इट कर रहे हैं, लेकिन कंक्रीट कुछ नहीं आया कि कौन वो लोग थे, कौन वो कल्प्रिट थे। और जब कल्प्रिटों की बात आती है तो फिर एक छोटे से मुलाजिम को या तो सस्पेंड किया जाएगा या उसको टर्मिनेशन का ऑर्डर दिया जाता है कि आपने सही काम नहीं किया। वो जो बड़े मगरमच्छ है, क्या उनके खिलाफ एफआईआर लगेगी? आप अपने इदारे पर कोई एफआईआर करने जा रही है? अभी जैसा आप फरमा रहे हैं, आप देखिए कि वक्फ बोर्ड अब वक्त के साथ, जैसा आपने कहा, जम्मू कश्मीर बदल रहा है, वक्फ बोर्ड की तकदीर भी बदल रही है, वक्फ बोर्ड की हिस्ट्री भी बदल रही है। और जिस चीज की आप बात कर रहे हैं कि व्हाइट पेपर या एफआईआर, ये तो छोटी बात है। अकाउंटेबिलिटी बहुत छोटी बात है। पेपर जारी करना, उसके लिए जब हम पहले दिल्ली में ही थे 6 साल, उसी जमाने से हमारे जहन में था कि जम्मू कश्मीर के वक्फ बोर्ड में होता क्या है। जब हमने ये पाया तो अभी हमारी पार्टी ने हमें वहां पे भेजा है और एक काम जो हम कर रहे हैं, ये ऑटोनॉमस बॉडी है। यहाँ पे सिर्फ हमें देखना है उस दृष्टि से जो अभी आप कह रहे हैं, एक जो व्हाइट पेपर वो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा, उसमें छोटे मोटे मुलाजिमों का कोई काम नहीं है। हमारे वक्फ बोर्ड में एक प्रॉब्लम ये है कि आप कोई पढ़ा लिखा मुलाजिम वहां नहीं देखेंगे। जो कश्मीर की हालत है, वक्फ बोर्ड में सिर्फ 10वीं या 12वीं पास मुलाजिम लगाए हुए हैं, क्योंकि उनको हिसाब देना ही नहीं था। आप पेटियां जो खोल रहे थे सीधे तिजोरियों में बाकी जा रहे थे, तभी तो अनपढ़ 250 लोग या 300 लोग या 400 लोग वहां पे रखे गए थे, जो सरकार की तरफ से वहां सीओज या बाकी जो ओहदेदारान केएस ऑफिसर्स रहते हैं, वो किस चीज की जवाबदेही देंगे? वो तो आते गए, वक्त के साथ सलाम करते गए और वक्त के साथ तिजोरियां खाली करते गए, लेकिन रिकॉर्ड हमने सारा लाया है। अभी उस पे हम काम कर रहे हैं। हमें उससे ज्यादा है कि वो जो रिकॉर्ड हमारे पास जमा होता जाएगा, लेकिन उससे पहले हम जम्मू कश्मीर के बोर्ड को फाल बनाना चाहते हैं। हम जवाबदेह बनाना चाहते हैं कि अगर हमने जब टेक ओवर किया तब हमारे तिजोरी में सिर्फ 25 लाख या 50 लाख है। आज अगर हम आपके सामने बोलेंगे तो आज हमारे पास, जब से हमने ऑर्डर पास किया है, जब से वहां से माफिया हटाया गया है, तब से हमारे पास 8 करोड़ रुपया आ गया है। जब से सिर्फ हमने माफिया हटाया, जब से हमने सिर्फ एक ऑर्डर पास किया है कि इस माफिया को बंद किया जाए, जिसको हमारे तमाम पॉलिटिशियंस ने किसी ने कहा ये मजहब में मुदाखलत है, मगर वो मजहब में मुदाखलत नहीं थी, उन तिजोरियों में मुदाखलत थी जो अनअकाउंटेबल फिनांसेस हमारे किन ग्रुपों में जाती थी, कहां जाता था वो पैसा, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। लेकिन अब हम अकाउंटेबल बन गए। अब हमारे पास आज की डेट में सिर्फ 4 महीने या 5 महीने हो गए तो 8 करोड़ मेरे पास है। तो ये मैं फख्र के साथ कह रही हूं कि हम अकाउंटेबल रहेंगे और हम इंशाअल्लाह रहमान आपको साल के बाद 100 करोड़ वक्फ बोर्ड के पास होगा। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब वक्फ की बात चलती है, आपने खुद कहा कि माता वैष्णो देवी श्राइन एक
इदारा है, लेकिन उनके पास असासों की बात जब करें तो बहुत अच्छे असासे बन रहे हैं। दुनिया से लोग आते हैं और वहां से या तो तालीम पढ़ के जाते हैं या वहां का रिसर्च पेपर लेकर जाते हैं, फिर वो अपने अपने इलाकों के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन जब आजकल हम ये भी सुन रहे हैं कि वक्फ जो है एक नए अंदाज में कुछ जिद्दत ला रहा है इदारे के अंदर भी, और कुछ नई टेक्नोलॉजीज का भी सहारा लिया जा रहा है। पहले ही हमने ई ऑफिस कर दिया और हमने ये भी कहा है, हमारे यहाँ पे सारे बैठे हैं अपने, तो हमने ये भी कहा है कि अभी हम कैंसर हॉस्पिटल का जो निर्माण फाउंडेशन रखने जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड अपना हॉस्पिटल भी, यूनिवर्सिटी ऑलरेडी हमारे पास है जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी के नाम से हमारे जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को मालूम होना चाहिए, वो 200-250 कनाल हमारे हैं। लेकिन उस गवर्नमेंट ने क्यों अपने फायदे के लिए वो वक्फ की जमीन यूनिवर्सिटी के नाम यूनिवर्सिटी के नाम नहीं कर दी, बल्कि अपने फायदे के लिए, अपनी जाती मफाद के लिए उस यूनिवर्सिटी को वक्फ का नाम नहीं दिया, बल्कि अब हम वो यूनिवर्सिटी भी अपने दायरे में लाएंगे, क्योंकि वो वक्फ की जमीन है, वक्फ ने उसको पैसा दिया है, जमीन भी, और 44 करोड़ उस वक्त भी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बना हुआ था वो भी वक्फ का है, और जितने भी वहां पे कॉलेजेस हैं, हम 19 स्कूल चला रहे हैं वक्फ के, और उसमें जो मुलाजिम है, उसमें जो पैसा हमारा जाता है, अभी भी हमारे सईद मंतकी स्कूल के स्टूडेंट ने नीट वगैरह क्वालिफाई कर दिया, हमारे बच्चे भी अच्छे से पढ़ रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि पैसे की जो खुर्द बुर्द जो हो रहा था वो अब रुक गया है, तभी हम ज्यादा कुछ सोचेंगे। कैंसर हॉस्पिटल की आप बात करें, कब तक की एक्सपेक्ट है कि फाउंडेशन स्टोन हो? मेरे प्रेसिडेंट साहब यहीं पे बैठे हैं, मैं इनसे ही सिफारिश करवाऊंगी कि जब हमारे गृह मंत्री साहब आएंगे तो उसी दिन कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण और फाउंडेशन स्टोन इनके हाथों वहां पे करा जाए, तो उससे बढ़कर वक्फ बोर्ड के लिए और बड़ी बात क्या हो सकती है। डॉक्टर रक्षा साहब, इससे पहले कि हम कैंसर हॉस्पिटल को बनाए, एक स्टडी पेपर होता है हमारे सामने कि ये जी मेरा प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन है, ये मेरा बजट है, फिर आगे चल के ये हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा। क्या वो ब्लूप्रिंट वक्फ के सामने है और क्या वो बोर्ड से अप्रूव होगा? कल जो हमारी रिव्यू मीटिंग थी एलजी साहब ने ले ली, और उसमें रेवेन्यू के जितने भी ऑफिसर्स बैठे हुए थे, हमारा कैंसर हॉस्पिटल का सारा 3D तक तैयार था, और एलजी साहब को हमने सारा बताया, गवर्नमेंट को सारा बताया, जितना भी उसमें जो काम होता है एक इंस्टीट्यूट को, कैंसर इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए, वो सारा ब्लूप्रिंट और सारा तैयार करके हमारे ऑफिसरान ने, और कल जो एलजी साहब ने रिव्यू मीटिंग ली उसमें वो सारा उनको बता दिया गया। बजट कितना होगा जो इस पे लगेगा? इसमें लगभग 200 करोड़ आएगा। तो प्लेस आइडेंटिफाई हो गई है? बिल्कुल। जो हमारे पहले हमने सोचा था कि हम जो 70 कनाल हमारे हैं हजरत सुल्तानुल आरिफीन के बिल्कुल जहां से हमारा स्कूल है, बट वहां पे किसी कारणों से वो हेरिटेज वहां पे साइट है, तो हमारे 600 कनाल ईदगाह में जमीन है, जिसके लिए बहुत अभी विवादों में दरख्शां अंद्राबी भी थी कि यहाँ ये नहीं बनेगा, उसमें हमारे 200 कनाल एक साइड से है, उसी में से हमने 70 कनाल कैंसर हॉस्पिटल के लिए रख दिए। जमीन की बात चल रही है तो डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी साहिबा, वक्फ के पास जमीन का असासा बहुत ज्यादा है, और जम्मू प्रोविंस से लेकर कश्मीर प्रोविंस की बात करें तो जमीन बहुत ज्यादा है, और शायद ही किसी इदारे के पास इतना जमीन हो, लेकिन माफियाइज्म और या जानबूझकर या कैसे भी हो कब्जा है, और आज तक भी न कब्जा छुड़ाने की कोशिश की गई और ना ही कभी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करके आगे जाने की कोशिश की गई। आपको ये बताते चले, क्योंकि जब से हमने इस इदारे का चार्ज संभाला तब से शायद ही हम कभी बैठे हों आज के दिन के बगैर, जहां हमने फिर भी हम लगे रहे ऑफिस के साथ भी, क्योंकि यही काम चलता रहता है। रेवेन्यू रिकॉर्ड, खुद रेवेन्यू सेक्रेटरी के पास बैठना, तहसीलदारों के साथ बैठना, डीसीओ के साथ बैठना, क्योंकि
हमारी गवर्नमेंट ने, हम बताएंगे आपको, हमारी गवर्नमेंट ने 2014 के बाद जो वक्फ एक्ट में तरमीम हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बता दिया कि जो वक्फ की जमीन है, यानी किसी भी इबादतगाह की जमीन है, मंदिर की है, मस्जिद की है, उस पे कोई और कब्जा नहीं कर सकता है। और 2013 जो एक्ट है हमारा, उसमें आप ये जो वक्फ की लैंड है, लोगों का जो कॉन्सेप्ट था वक्फ के बारे में कि ये जमीन ऐसे ही है, शायद जो लोग मुसलमान छोड़ के गए हैं, पाकिस्तान चले गए हैं, ये शायद वो जमीन है, बट वक्फ की जमीन वो जमीन नहीं है, वो कस्टोडियन लैंड कहलाती है। ये जमीन वो है जो लोग दान देते हैं, मतलब आप अल्लाह के नाम पे ये वक्फ कर लेते हैं। जैसे अभी जब से मैंने संभाला है तब से आपने देखा होगा कश्मीर में फिर से ये रिवायत फिर से आ गई कि लोग फिर से वक्फ यानी डोनेट अपनी लैंड करने लगे हैं। कल भी किसी ने की 1 करोड़ जमीन, 1 करोड़ मालियत की, परसों भी कोई आया 2-5 करोड़ की जमीन मालियत वक्फ करने के लिए। यानी फिर से ये कॉन्सेप्ट आ गया है कि वक्फ के हाथ में जाएगा तो ये सही हाथों में जाएगा। ये वक्फ लैंड वही है, इसलिए ये वक्फ में भी ऑलरेडी उस कागज में भी होता है। कुल मिलाकर कितनी जमीन सूबा कश्मीर में होगी जिस पर कब्जा होगा, और कुल कितना सूबा? कल जो हमारे आंकड़े जो गवर्नमेंट ने हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मांगे थे, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी, खासकर पीएमओ से आया था, तभी कल एलजी साहब की जो रिव्यू मीटिंग थी रेवेन्यू के लिए, तो उससे ये सारे आंकड़े दिए गए। क्योंकि जम्मू में हमारी जमीन पे बहुत सारे ज्यादा कब्जे हैं, ये नहीं है कि कश्मीर में नहीं है। कश्मीर में उन लोगों के पास है जो व्हाइट कॉलर रखते हैं, यहाँ उन लोगों के पास है जो झोंपड़ियों में रहते हैं। फर्क इतना ही है, व्हाइट कॉलर करें, व्हाइट कॉलर्स के पास जितना भी है यहाँ पे थोड़े से झोंपड़ियों में, उनके लिए तो वो उन्होंने कोई उसमें कब्जा या उसमें नाम नहीं किया है, उन्होंने तो वहां पे व्हाइट कॉलर्स वालों ने अपने नाम भी कर दिया है, जो अभी इंशाअल्लाह रहमान आपके साथ चल के ना व्हाइट कॉलर रहेगा ना उनके वो मकान रहेंगे, क्योंकि उनको वक्फ का लैंड। आप पर तो यही इल्जाम है कि आप जनाब प्रो जम्मू और एंटी कश्मीर है, इसलिए इस तरीके के ऑर्डर्स आते हैं बार बार तंग करने के लिए। हर वक्फ में ना मैं जम्मू हूं ना मैं कश्मीर हूं, मैं वक्फ इदारे की हेड हूं और उसी कानून के तहत चलना है जो मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है। वक्फ एक्ट में मुजाविरों और पीर साहिबान की हैसियत क्या है? देखिए, वक्फ एक्ट में हमारे मुजाविर या सजादा नशीन नहीं है। ये सिर्फ 1953 में मैडम गांधी ने 2 श्राइनों को एक स्पेशल एक्ट के तहत, वहां पे जैसे हमारे अजमेर शरीफ में है, वहां पे उनको एक स्पेशल एक्ट के तहत वहां पे मुजाविरों को रखा था, और निजामुद्दीन दिल्ली में। बाकी जो सेंट्रल वक्फ एक्ट है उसमें न मुजाविर कहीं है और न कहीं सजादा नशीन है, बल्कि अगर मुतवली हो जो हमारे रूरल एरियाज में कहीं पे भी श्राइन है, उसका 5 लाख से कम इनकम है, तो हम वहां पे किसी को मुतवली रख सकते हैं। अदरवाइज हमारे एक्ट में कोई मुजाविर नहीं है, कोई सजादा नशीन नहीं है, क्योंकि सजादा नशीन भी बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है, जो वहां पे बैठा वो सजादा नशीन है और वो मुजाविर है। सजादा नशीन आप उसी को कहते हैं जिनकी लीनेज होती है, जो उसका फोर फादर होगा, और वक्फ में अलल अवलाद है। अगर आपने वक्फ अलल अवलाद किया है तो आप इसकी देख रेख कर सकते हैं, फिर आपका वक्फ बोर्ड वक्फ एक्ट के तहत आपको हम कोई तनख्वाह रखेंगे या आपको कुछ पैसा देंगे। अगर ये वक्फ अलल अवलाद नहीं है, प्योरली वक्फ है, तो फिर आप इस पे हिस्सेदारी या कोई हक नहीं जता सकते। इस कानून को कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, जी, कितना मुश्किल है ये इम्प्लीमेंट करना, और बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल आप खड़ी कर रहे हैं? देखिए, जब भी कोई मुश्किल काम होता है ना, वो बीजेपी गवर्नमेंट ही कर लेती है। तो इसमें जब हम सच्चाई का साथ देते हैं और जब हमें
प्यूरिफाई हर एक चीज को करना है, खासकर दरगाहों में जो इबादत गाहें, जो वहां पे सूफीज्म है, उसको रिट्रीव करने के लिए ये कदम, ये इकदाम उठाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जब भी किसी भी दरगाह पे जाते हैं वहां हम देखते हैं सियासत है। जहां मैं जाती हूं, मुझे जाना है मखदूम साहब के यहाँ, दस्तगीर साहब के यहाँ, मैं दस्तगीर साहब के लिए जाती हूँ, मैं हजरत सुल्तान आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह के लिए जाती हूँ, उनसे मांगने के लिए जाती हूँ, अल्लाह को उनको मुखातिब करके अल्लाह से कुछ मांगने जाती हूँ। तो बीच में जब वो हजरात आ जाते हैं तो मैं किससे मांगूं, क्या दुआ करूं, तो वहां पे पॉलिटिक्स हो चुकी थी। अच्छा। तो ये कानून लाके हमारे साथ आज पहली बार मुझे ये कहने में कोई मतलब शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार कश्मीर के लोगों ने कहा कि सरकार ने कोई अच्छा फैसला किया, जिससे वाकई में एक ऐसा फैसला किया कि दरगाहों और अब जो हमारे ज़ायरीन हैं उनके दरमियान कोई दीवार नहीं रही। एक आखिरी सवाल जो मैं जानना चाहूंगा आज इस बदलते इस कॉन्क्लेव के अंदर, बदलता जम्मू कश्मीर के अंदर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट वो है कि सूफीज्म को रिवाइव करने के लिए हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक प्रोग्राम चला रही है, मिनिस्टर फॉर होम के अंदर बड़े प्रोग्राम है। लेकिन जब मैं इसको अपने एंगल से देखता हूं, जम्मू कश्मीर के प्रेजेंस से देखता हूं, तो आपके इदारे की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है रिवाइवल ऑफ सूफीज्म, क्योंकि रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ, ड्रग्स, ये सब चीजें जब हम देखते हैं तो ये एक इदारा मुझे ऐसे लग रहा है अगर ये सही सिमत में चला तो आपकी 70 से 80% परेशानी ऑटोमेटिकली खत्म होगी इंशाअल्लाह रहमान। उसी की तरफ गामजन हैं हम, और आप आए दिन देखेंगे अभी आने वाले दिनों में। आज आपको मालूम है आप बहुत ज्यादा सूफीज्म में खुद एतमाद रखते हैं। आज हमारे हजरत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पे दिन चल रहे हैं, उर्से मुबारक आ रहा है, और लोग अब बिना किसी रोक टोक के वहां जा रहे हैं। और खासकर हमारा यूथ जो हमारे इमाम साहिबान पे, हमारे मौलवी साहिबान पे, जो हम चाहते हैं कि वो लोगों को ये बता दीजिए कि असल में सूफीज्म क्या है। सूफीज्म है कि इंसानियत को उरूज पे लाना, और अमन, तरक्की और खुशहाली सूफीज्म का पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है। और उसी सर्वाइवल के लिए, उसी को रिवाइव करने के लिए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड अब जो पहल हमने की है वो हम इंशाअल्लाह रहमान जम्मू कश्मीर के सामने होगा, वही बदलता जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रक्षा अंद्राबी साहिबा बात करने